Hello class 12th. We have completed our chapter 12 in our previous video. Now today let us see some short tricks to crack case studies of this 12th chapter, consumer protection. So how to crack case studies? Only affected consumer can file complaint against seller or manufacturer. ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम हुई है तो वो ही केस फाइल कर सकता है. ऐसा नहीं है कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कंज्यूमर केस फाइल करे. ठीक है, तो यहाँ अफेक्टेड होना उसका ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखने की है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट हिंट इज फॉर फाइलिंग कंप्लेन कंज्यूमर मस्ट फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए है, जैसे सब ही हैज़ टू टेक बिल, he has to check dates, etc. If he has not fulfilled his responsibilities, then he will not be able to file a case. Okay, so these things also should be checked while attempting case studies. Okay, then next is if case mentions something about making consumers aware. Okay, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए अगर कोई केस स्टडी में दिया हुआ है, इट मीन्स कौन सा यहाँ पे राइट इफेक्ट हो रहा है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. ओके, देन नेक्स्ट इज इफ केस इज अबाउट कंप्लेन रिगार्डिंग क्लेम, देन अमाउंट शुड बी टेकन केयर ऑफ. तो अमाउंट के लिए जो कंसिडरेशन होगा, और अमाउंट के लिए पता है कि कंपनसेशन ऑफ अप टू ₹20 lakhs दे कैन फाइल कंप्लेन इन डिस्ट्रिक्ट फोरम. देन in state commission from 20 lakhs to ₹1 crore, and then more than 1 crore, then those case would be filed in national commission. Then for filing complaint in Supreme Court when not satisfied with national commission's order. okay, अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, और उसमें भी ध्यान रखने वाली बात सबसे ज़्यादा ये है कि वो जो क्लेम है वो मोर देन 1 crore है. अभी सपोज ए जो है वो 15 लाख की कोई मशीन बाय करता है, ठीक है, और उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, उसके लिए वो केस फाइल करता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में. फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो विदिन 30 days केस फाइल करता है स्टेट फोरम में. अब स्टेट फोरम के डिसीजन से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है और अब वो केस करता है नेशनल फोरम में, नेशनल कमीशन में. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अब यहाँ पे सपोज वो नेशनल कमीशन के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट में वो केस फाइल नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि ये जो 15 लाख जो अमाउंट है वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, वो नेशनल कमीशन के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है. ठीक है, तो नेशनल कमीशन के जो जुरिस्डिक्शन में आती है, मीन्स 1 crore से ज़्यादा के क्लेम वो ही वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है, उसके अलावा वो नहीं कर सकता. ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू है इस चैप्टर का. नाउ लेट अस डिस्कस सम MCQs. देन Golu bought an iron from Sidhu Electricals. She got an electric shock while using the iron. Which consumer right has been violated here? See, he has got the shock while using iron, means his right to safety, okay, is being violated here. Very simple, because he has the which consumer right has been violated here. So here very simple, right to safety is being violated here because he has right to safety against goods and services which are hazardous to life, and as this electric shock he has got which is hazardous to his life, so here this right to safety is being violated. The next is caveat venditor implies caveat venditor और caveat emptor. emptor means तो होता है buyer और venditor means होता है seller. so let the seller beware. okay, because consumer is the king of the market, so caveat venditor means let the seller beware. Now next question is, who cannot be a consumer? A buyer of goods or services for considerations, जो कुछ ना कुछ बदले में कुछ भी मनी या कोई भी और दूसरी चीज़ देकर गुड्स या सर्विस बाय करता है, या a buyer of goods or service for resale? No, it cannot be. A person who is purchasing goods for other? No, he also cannot be.
because he is not the final user. Final user is the who is using, and a person who is gifting to someone. And this, so here the option A would be correct, a buyer of goods or service for considerations. Okay, then next question is, a consumer has the right to file a complaint in case of dissatisfaction with goods or services in grievance cell. Now, which consumer right is it? Very simple. Whenever it is written that consumer has the right to file a complaint for his grievances. Okay, कंप्लेंट जहाँ उसको फाइल करने का राइट है, इट मीन्स राइट टू बी हर्ड. ओके, नेक्स्ट, कंज्यूमर्स आर सफरिंग ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, देयरफॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड. इट इम्प्लाइज कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, देन अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, देन वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, और नन ऑफ द अबव. सी, कंज्यूमर इग्नोरेंस तो यहाँ हो नहीं सकता, बिकॉज कंज्यूमर्स आर सफरिंग ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड. कंज्यूमर्स, बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो बहुत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के कारण सफ़र हो रहे हैं. ओके, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है. इसका मतलब है कि कंज्यूमर्स का वाइड स्प्रेड, वाइड लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. सो ऑप्शन सी इज़ correct. Okay, the next is, look at the picture and find where the consumers would have complained at the first. अब यहाँ पे let us see the amount. So the Maharashtra State Consumer Commission asked a leading soft drink maker to pay a claim of ₹1 lakh to Chandrasekhar when he complained that he has found some solid objects inside a sealed bottle. अब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई लाखों में होगी. ऑफ कोर्स, ओके, 30, 40, मैक्सिमम 50 रुपीज़ में आ जाएगी. ठीक है, अगर बड़ी भी बॉटल है तो वो 100 रुपीज़ इतना मान लेते हैं. तो वो सबसे पहले कहाँ केस फाइल करेगा? अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट ही वुड फाइल अ केस इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम. वेरी सिंपल. देन नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट इज एक्टिवली एडवर्टाइजिंग फॉर जागो ग्राहक जागो, विच कंज्यूमर राइट इज़ हाईलाइटेड. ना, कंज्यूमर्स को अवेयर कर रही है, कंज्यूमर्स को एजुकेट कर रही है गवर्नमेंट इस कैंपेन के थ्रू, इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. ओके, टू प्रमोट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर. सो यहाँ पे वेरी सिंपल, अवेयरनेस कह लो या कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए कह लो, तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ओके, इज हाईलाइटेड हियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which consumer right is being highlighted in the following picture? See, electrical appliances are given here. So without an ISI mark may give you shock. Ensure that you are always buy with ISI mark. So very simple, it is right to safety. Okay. Then next question is, Pooja purchased a car worth ₹18 lakhs from an automobile company and found its engine defective. Okay, 18 lakhs. Then she filed a complaint in district forum, but she was not satisfied with the orders of district forum and decided to appeal further. Suggest her the final highest authority where she could appeal if not satisfied again by the decision of the next highest authority. Okay. So again she can file means, सी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में तो उसने किया है, उसके ऑर्डर से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो फाइनल हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी होगी जहाँ पे कि वो क्लेम कर सकती है. ठीक है, वो अपील कर सकती है. तो वो, ये मैंने पहले ही कहा है कि अगर वो 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ज़्यादा के अगर केसेस होते हैं तो ही वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्टेट कमीशन जा सकती है, फिर स्टेट कमीशन से भी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेशनल कमीशन जा सकती है, लेकिन नेशनल कमीशन के बाद वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती. ओके, सो हियर फाइनल हाईएस्ट अथॉरिटी होगी नेशनल कमीशन. ओके, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये बहुत बार घुमा फिरा के, लैंग्वेज घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. सो आपको ऐसा नहीं करना है. The next question is, mention the quality mark which a
कंज्यूमर शुड लुक फॉर वाइल परचेजिंग ज्वेलरी। अब ज्वेलरी पे कौन सा मार्क होता है? सिंपल हॉलमार्क होता है। ओके, तो हॉलमार्क। देन मैच द कॉलम। नाउ फाइल अ कंप्लेन। फाइल अ कंप्लेन, ये कौन सा राइट है? ओके, तो ये फाइल अ कंप्लेन, ये राइट टू बी हर्ड है। ये ऊपर हमारे एक केस स्टडी आई थी ऐसी, ठीक है। देन नेक्स्ट, सेलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल प्रोडक्ट। ओके, मोस्ट सूटेबल प्रोडक्ट है, इट मीन्स वो उसका राइट टू चूज़ है कि वो चूज़ कर सकता है, उसको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, उसकी थॉट्स को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। उसको राइट है कि वो मोस्ट सूटेबल, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है उसके लिए वो बाय कर सकता है। देन चेकिंग द प्योर वेजिटेरियन साइन। अब प्योर वेजिटेरियन साइन है, इट मीन्स हिज राइट इज़ टू बी इन्फॉर्म्ड। ओके, उसे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है ये। एंड देन सेफ एंड सिक्योर लाइफ मीन्स राइट टू सेफ्टी। यहाँ पे सिक्योर या सेफ्टी की बात आती है, सिंपल है राइट टू सेफ्टी। सो हियर दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 1 इज सी मीन्स फाइल अ कंप्लेन, राइट टू बी हर्ड। देन सेकेंड का डी है सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल प्रोडक्ट। देन checking the pure vegetarian sign, right to safety, this third is B, and select and secure life, safe and secure life, then fourth is A. Okay, then next is 4 signs are given, 5 signs, and you have to tell which signs are there. So first is this watermark. Okay, so it shows that it is eco-friendly product. It shows it is an eco-friendly product. Okay, then this is the agricultural mark which is put on agricultural products. Egg mark means this is the hallmark which can be used on gold jewelry. Then FASSI which is used on food products. Okay, and ISI, very simple, electrical appliances. So here this whichever option is correct, okay, you can take. If you know the all the options, then it will be very easy you to choose. Okay, then next is consideration is given and forum is given. So more than 20 lakhs rupees and up to 1 crore, these cases come under state commission. Then rupees up to 20 lakh district forum, and more than 1 crore national commission. Okay, very simple. Then see this question, these NGOs are not there in your course. Okay, so let us move ahead. Then satisfied consumers bring repeat sales, and it is in long-term interest of business. Then business uses society's resources because business is trustee of resources. Business is not the owner, business is the trustee of the resources, and supply good quality products at reasonable price. It is the social responsibility of the business. Okay, so here this option A is correct. Now these fill in the blanks also let us discuss. Consumer Protection Act 1986 applies to all goods and services of any kind other than for commercial purposes. Okay, then a consumer has the right to file, complain, and to be heard in case of dissatisfaction with a good or service. Okay, कंप्लेंट फाइल करने का राइट है और ये राइट टू बी हर्ड है. वेरी सिंपल. दिस क्वेश्चन इज कमिंग थर्ड टाइम. ओके, बार बार डिफरेंट तरह से ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है. तो जहाँ पे फाइल कंप्लेन अ फाइल, तो वहाँ पे सीधा राइट टू हर्ड, ये आपको बस आइडिया आ जाना चाहिए. देन कैविट एम्प्टर, ऊपर आया था कैविट वेंटिटर.
कैविट वेंडिटर मीन्स तो लेट द सेलर बी वेयर, बट जहाँ कैविट एम्प्टर है इट मीन्स लेट द बायर बी वेयर। तो पहले ये अप्रोच थी, ओके, बट अब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब मार्केट में जो अप्रोच है वो है लेट द सेलर बी वेयर मीन्स क्रेडिट वेंडिटर। ओके, so today we end our discussion here. I hope you have got enough idea about this chapter. Then also if you have any doubts, you can let me know about this through your comments in comment box. Thank you. God bless you.